Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So yesterday I got some queries. किसने पूछा था इसने? From economics, some basic question paper लाए हो क्या? नहीं, आज ही डिस्कस करना है. देखो, from economics they have started asking कुछ trends based question, and these trends based questions are very simple. वो 2 question free का है आपका. So these I will ensure that at least these 2 questions they should be correct. तो ये तो हो गया गुड न्यूज. सो इन 1 hour और समथिंग आई वांट टू कवर दिस थिंग. 1 घंटे में हो जाएगा. अगर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ट्रेंड बेस्ड वाले वो आपके ठीक हो जाएंगे. दिस आई कैन एंश्योर. एंड द बैड न्यूज इज दैट वी हैव वन सेशन एट 5 o'clock टुडे बाय वन ऑफ आवर कैंडिडेट हु गॉट सेलेक्टेड इन द 6th attempt. सो इफ यू आर गेटिंग अ फीलिंग कि 2 attempt या 3 attempt के बाद नहीं हो रहा है, तो लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे भी हैं. He was persistently clearing prelims exam almost majority of the times, and he also got the interview calls, but final नहीं हो रहा था. This year he got some 180 rank or something. So I asked him to come to talk about the prelims wala perspective. So if you have any queries, the session is at 5 o'clock. Anyways, first we will start from the general trends. These are the broad questions which are coming in last 2-3 years. These are some trends. First we will discuss upon the type of questions which are coming, and then we will go towards this particular sheet. So consider the following statements. The quantity of the imported edible oil is more than the domestic production of edible oils in the last 5 years. The government does not impose any custom duty on all the imported edible oils in a special case. क्या है इसका आंसर? बुक सब बंद कर दो, कॉमन सेंस से निकाल देंगे. इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल. 1 ओनली है क्या? 2 नहीं है क्या? या नन ऑफ द अबव लग रहा है? कुछ क्रैम करना है क्या इसमें? नहीं, कुछ क्रैम नहीं करना है. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा. एंड बाय सम पैसिव नॉलेज यू मस्ट हैव रेड कि इंडिया के केस में द प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू द एडिबल ऑयल्स दैट वी हैव. वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम मलेशिया एंड ऑल दीज कंट्रीज. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल, इज करेक्ट. एक तो नॉलेज है, जो टॉपिक कवर करेंगे वहां से आ जाएगा. एडिबल ऑयल का लास्ट INA में कवर किया था. The second, the government does not impose any custom duty on all the imported edible oils as special case. ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर एडिबल ऑयल्स को हम फ्रीली इंपोर्ट करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कभी बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन अ बैड शेप. इंडियन एग्रीकल्चर इज इन अ बैड शेप. स्टिल इफ यू विल अलाउ फ्री फ्लो ऑफ द एडिबल ऑयल विदाउट इंपोजिंग एनी कस्टम ड्यूटी, से 2 लॉस है. एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस होगा, और दूसरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल, and India is agriculture driven economy. So second statement तो नहीं हो सकता है, and this is how the first statement is correct. This I am telling you, if you don't know nothing about these such type of the questions, वहां से निकाल लें first one. Otherwise we are going to cover a lot of topics जहां से कुछ पैसी knowledge निकलेगा आज. Next we have is with reference to the governance of the public sector banking in India, consider the following statement. Capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in last decade. Catchword is consistently increase हुआ या नहीं हुआ? कॉमन सेंस क्या लगाओगे? हाँ, क्यों नहीं हुआ? वही कॉमन सेंस पूछ रहा हूं. इसकी जगह टेक्स्ट टू जीडीपी लगा दो, फिर भी कॉमन सेंस. द कॉमन सेंस इज 2008 का रिसेशन आया था, सो गवर्नमेंट का पैसा कम हो गया था. सो व्हेन गवर्नमेंट इज हैविंग लेस मनी, the corporates, they also have the less money. When corporates have less money, to tax to GDP ratio be consistently steadily increase nahi hoga. And when the government is having less tax collection, so public sector bank infusion cannot be steadily increased in last 1 decade. We have is when we say last 1 decade, it does not mean 2001 to 2010. It means जो चल रहा है उसे 10 साल पीछे कर देना. So first statement cannot be correct. Irrespective तुम्हें पता नहीं कि इंद्रधनुष आया था, कुछ भी स्कीम आया था, नहीं पता, still the common sense says this cannot be the correct statement. The second, to put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent State Bank of India has been effected. So this is a common statement. पता है, बहुत सारा merge कर दिया उसके साथ ना. Next we have, which of the following has been occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991? First statement is the share of agriculture in GDP increased enormously. वो तो decrease हो रहा है, which is in news. Although with respect to the world, it is one of the highest.
We have 17% share of agriculture in India's GDP. With respect to countries, specifically the developed countries, we have UK and all, in which it is less than 2%. In all these countries, it is 2%. So with respect to our competitors or other developed countries, India's share of agriculture is much more. But with respect to India's comparison of last 2 decades, last 3 decades, it is persistently decreasing. The share of agriculture is decreasing, plus the share of agriculture in employment is also decreasing. But still the base is very high. So suppose earlier 70 people, they were working in agriculture. So 70% हुआ. This has decreased, but the pace is slow. So अगर question आए कि persistently it has decreased, so वो wrong हो जाएगा. Because they change the base year in between. वो problem हो गया. Otherwise वो decrease हो रहा है. Steadily it is decreasing. But in 2015 they changed the base year. And when they change the base year, suppose this is Indian economy. उसके 3 part होंगे. एक होगा agriculture, एक होगा industries, एक होगा service sector. What they did is, industry का कुछ part agriculture में count करना start कर दिया और services का कुछ part भी agriculture में count करना start कर दिया. So one day before the share of agriculture and allied was 14%, the very next day it was more than 17%. Because they added new items from the GDP, which were earlier counted under manufacturing and service under the agriculture sector. So as such agriculture की productivity increase नहीं हुई, but उसका share increase हो गया, because other items they started counting under the agriculture sector. So steadily agriculture sector has decreased. Wrong, because 2015 में base year change हो गया था. Then we have the share of India's export in the world trade has increased. Right or wrong? Steadily हो जाता तो गड़बड़ हो जाता, which we will discuss later on. But right now it is correct है. India's export is increasing. India GDP increase हो रहा है, and also it is increasing. Next we have FDI inflows has increased. Correct है. इसमें भी अगर steadily आता तो wrong हो जाता, because recession आया था. Recession आया था तो उनके पास खुद के ही पास पैसा नहीं था, तो इंडिया में क्या FDI करते हो. So this is right now it is correct. Then India's foreign exchange reserves increased enormously. क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं. फर्स्ट वाला पार्ट भूल गए. 1991 के कंपैरिजन में पूछ रहा है, उसको हमने भूल गए. दे आर कंपेयरिंग 1991 वर्सेस टुडे. सो एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज्ड, करेक्ट है. देन शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड, करेक्ट है. देन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज इनॉर्मसली, करेक्ट है, बिकॉज दे आर आस्किंग फ्रॉम 1991. रिसेंट 5 साल में अगर पूछ रहा होता तो भी करेक्ट है, बट इनॉर्मसली नहीं है. नॉर्मल क्वेश्चन आता तो आगे ट्रेंड बेस्ड पीपीटीज इंफोग्राफिक्स लगाए मैंने. बट रिसेंटली इट हैज डिक्रीज्ड. इन द लास्ट 2 years इट हैज डिक्रीज. अर्लियर इट वाज मोर देन 430 बिलियन डॉलर गया था, बट अभी वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज रुपी में डेप्रिसिएशन हो रहा है और क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है. एंड क्रूड ऑयल इज व्हाट वी आर इंपोर्टिंग. सो इंपोर्ट करने के लिए you have to give dollar. पैसा कहां से आ रहा है? फॉरेक्स से आ रहा है. So in the recent 2 years our forex has decreased. In last 5 years it has increased but not steadily. वो increase नहीं हो रहा है. We will discuss कि क्या क्या broad values कितना है उसका, वो discuss करेंगे. So this is what the answer is. क्या हुआ आंसर? B हो गया. 2, 3 and 4 only. Now we have this question. Consider the following statements. Tax revenue as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. Same first वाला क्वेश्चन या सेकंड वाला क्वेश्चन. रिसेशन आया था, इंक्रीज हो ही नहीं सकता. प्लस वी ऑल्सो नो ट्विन बैलेंस शीट का इशू चल रहा है, तो कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, सो नहीं होगा. सेकंड, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड. अगेन स्टेडीली में नहीं आएगा, बिकॉज व्हेन वी कंपेयर, ये शायद 18 में क्वेश्चन आया था या 17 में, जब भी आया था. So you have to compare between 2007 to 2018. अब 7 के टाइम में तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमी था, एंड देन एफआरबीएम का टारगेट आया था. एफआरबीएम टारगेट में दे वांटेड टू डिक्रीज इट. सो 2007 में तो लेस था, 2008 में भी लेस था, एंड देन इट इंक्रीज एंड नाउ अगेन डिक्रीज हो रहा था. सो दिस इज अगेन नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट वी हैव. तो इसके लिए यू डोंट हैव टू क्रैम द फैक्ट्स. You just have to understand the overall economic, macroeconomic indicators का वैल्यू कितना है और क्या क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे कर लोगे. Also sometimes they ask the question, which of the following macroeconomic indicators may. ये may वाले में एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, उसी के लिए आपका क्वेश्चन का वेट कर रहा था मैं. एनीवेज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. फोटो है तो दिखाओ.
So the question is, which of the following are likely to strengthen the corporate bond market in India? Question I'm again repeating. Which of the following are likely to strengthen the corporate bond market in India? Catchword is likely. So you should not be like 1-to-1 relationship nahi chale. Diffuse relation hoga तो then also it is a correct statement. First statement is allowing the banks to issue masala bonds. जितना ज्यादा मसाला बॉन्ड होगा उतना ज्यादा इकोसिस्टम डेवलप होगा. जितना ज्यादा इकोसिस्टम डेवलप होगा तो चांसेस likelibility is going to increase that corporate bond market strong hoga. Second, making government securities more accessible to the retail investor. Again true hoga because फिर ecosystem develop होगा तो फिर correct होगा. So you have to understand the word likely here. अगर likely नहीं होता तो wrong हो जाता मसाला bond because वो तो आप बाहर issue कर रहे हो. Question तो Indian bond market पूछा है. Question is about the Indian bond market strengthen होगा या नहीं होगा. मसाला bond तो it's a derivative security, derivative bond which you are creating outside India in the rupee denomination we have. Second question भी है क्या? With reference to the Indian economy, consider the following. Recapitalization bonds issued to public sector banks. क्या है question? Which of the following may impact? The question is, which of the following may impact the fiscal deficit of the government? First statement is recapitalization bonds issued to public sector banks. Right or wrong? True ना यार, पैसा कहां से आएगा? Recapitalization बैंक गवर्नमेंट देगा तो may impact the fiscal deficit. Right. Second, sovereign gold bonds. Yes or no? Yes. Third is corporate bonds. आंसर क्या हुआ? जो बताया था वही होगा. जेटली क्या बोले वो छोड़ो. जो लॉजिक कहता है उस हिसाब से दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट वी हैव बिकॉज क्वेश्चन कैन आल्सो बी रॉन्ग इवन इन यूपीएससी आल्सो बट अपने लॉजिक के हिसाब से दिस इज करेक्ट ट्रू होगा. वन मोर क्वेश्चन ही आस्क्ड मी यस्टरडे. एनीवेज वो बाद में डिस्कस कर लेंगे बट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दी सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए अबाउट द इंडियन इकोनॉमी. तो ये जितने भी पैरामीटर्स दिए हैं उसकी रफ वैल्यू देख लेते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि इंडियन जीडीपी में इंक्रीज हुआ. नाउ देखो फर्स्ट लेवल तो उसने पूछ लिया है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो हैज स्टेडीली इंक्रीज और डिक्रीज इन लास्ट 10 years. नेक्स्ट टाइम इफ दे आस्क दे आर गोइंग टू आस्क डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आफ्टर जीएसटी उसका इंपैक्ट क्या हुआ एंड ऑल. सो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी रिलेटिवली डिफिकल्ट. दिस इज हाउ दे आर इवॉल्विंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक. ऐसे केसेस में एंड इकोनॉमिक्स के केस में दे हैव नॉट आस्क्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस सिंस 2013 में लास्ट पूछा था बस. उसके बाद से बेसिक क्वेश्चन पूछता है. तो अगर 19 में पूछ लिया तो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेंगे हम. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जीडीपी कितनी है. $210 trillion रुपीज. नहीं ही इज टॉकिंग अबाउट नहीं रुपी में नहीं, नॉमिनल जीडीपी ही इज टॉकिंग अबाउट नॉट द रियल जीडीपी वी हैव. एनीवेज हाँ कितना इंडिया जीडीपी इज रफली. एक तो लाख करोड़ में बता दो. 150 160 170 लाख करोड़ के आसपास में है. in terms of the billion dollar we have is 2.5 trillion dollars we have is. $1 की वैल्यू चल रही है कुछ 70 रुपीज के आसपास. 70 into 2.5 roughly makes 160 170 lakh crores. Broadly $1 billion equivalents to 7,000 crores. $1 trillion equivalent to 70 lakh crores. अब 70 लाख करोड़ को 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 170 180 के आसपास में इज द वैल्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी वी हैव. नाउ विद इन दिस इंडियाज जीडीपी फर्स्ट तो एक तो इसको इंटरनेशनल कंपैरिजन कर लो कि इंडिया की जीडीपी इतनी है तो वर्ल्ड की जीडीपी कितना होगा. सो वर्ल्ड्स जीडीपी इज रफली 70-75 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है. उसमें मैक्सिमम होगा यूएसए एंड सेकंड वी हैव इज चाइना. USA having some 17, 18, 19 trillion dollars
चाइना इज हैविंग सम 11-12 ट्रिलियन डॉलर्स. ये रियल टर्म्स में बता रहा हूं, सब एक ही में याद करेंगे बस. एंड देन वी हैव 4, 5, 6 एंड देन वी हैव इज इंडिया इज रफली 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स, रफली इक्विवेलेंट टू 170, 160, 180 लाख करोड़. उसमें कंफ्यूज मत होना कि रियल टर्म्स में है या नॉमिनल टर्म्स में है, सेम रहेगा आपके हिसाब से, ठीक है. यू डोंट हैव टू क्रैम द एग्जैक्ट वैल्यूज. देन विद इन दिस पर्टिकुलर GDP is the money value of all the goods and services जो प्रोड्यूस कर रहा है. अब प्रोडक्शन कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट जो प्लान करता है, जो बजट आता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट एंटिटीज. तो इसको डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ तो गवर्नमेंट कर रहा है, दिस इज गवर्नमेंट, एंड दिस वी हैव इज द प्राइवेट सेक्टर. नाउ गवर्नमेंट आया तो अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट वी हैव इज. सो यूनियन इज रफली कितना है बजट का वैल्यू? 25, 26, 27 लाख करोड़ के आसपास में. एवरी ईयर इट चेंजेस. सो रफली वी कैन से यूनियन इज प्लानिंग फॉर सम 25 लाख करोड़ एंड स्टेट इज अगेन प्लानिंग फॉर सम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 25 लाख करोड़. दोनों में अगर क्वेश्चन आता है तो स्टेट इज मोर देन यूनियन गवर्नमेंट. आपके याद करने के हिसाब से सेंटर स्टेट ऑलमोस्ट सेम, 22, 23, 24, 25 जितना भी याद कर सको, is the rough contribution, is the rough value of the budget of union government and states. जो बच गया वो प्राइवेट सेक्टर कर देगा. तो प्राइवेट सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? सम 70, 75, 80 लाख करोड़ के आसपास में इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर. वी हैव इज देयर कंट्रीब्यूशन. नाउ विद इन दीज सेक्टर्स देयर इज अ क्लासिफिकेशन, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो कुछ एग्रीकल्चर कर रहा होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रहा होगा और कुछ सर्विस सेक्टर कर रहा होगा. तो एग्रीकल्चर का शेयर कितना है जीडीपी में? 17 is out of this total. Agriculture we have is 17% के आसपास में. Industries we have is सर्विस, पहले सर्विस एज्यूम करते हैं माइनस करके इंडस्ट्री का. सर्विस we have is 55 विदाउट एडिंग कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन ऐड करोगे तो 60% के आसपास में हो जाता है. सो 55. नाउ दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन कि कंस्ट्रक्शन को ऐड करना है या नहीं करना है. सो गवर्नमेंट दोनों तरीके का डेटा देता है. विद स्पेसिफिकली with construction 55, 56% and without construction 55, 56, with construction 60% के आसपास में. कितना बचा? 55% के आसपास में. 25% के आसपास में रह गया क्या? हाँ, broadly. So 25% के आसपास में is the share of the industrial sector we have is. Now comes the question कि इनका employment में कितना share है? This can also be asked. Decreasing order में लगा दो. तो majority तो we know किसका होगा? Agriculture. कितना परसेंट? 47, 48, 49% is the agriculture sector share in employment. Then we have industries का and then we have service sector. कितना सर्विस का? 14. ये कब से आया? 30% है सर्विस का. और इंडस्ट्री का? सर्विस 19-20 नहीं है, नहीं, रॉन्ग. सॉरी, 15 to 20% सर्विस का. नहीं, गलत है. एनीबडी एल्स? अरे नहीं, इतना कम नहीं है. मैंने आई एम सेइंग गलत है मतलब ज्यादा है, उसको बढ़ाओ यार. 25 to 30% वी हैव इज द सर्विस सेक्टर. एग्जैक्ट है तो 28% है. एग्जैक्ट देखना है तो, बट 25 to 30 चलेगा. 25 to 30% इज द सर्विस सेक्टर. एंड देन वी हैव इज द, बच गया वो इंडस्ट्री है. इंडस्ट्री में आता है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का 17-18% है. मैन्युफैक्चरिंग इज हैविंग अ शेयर ऑफ 17-18%, जिसको नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में 25% करना है. द शेयर इज टू इंक्रीज इट टू 25%. मैन्युफैक्चरिंग का शेयर टू जीडीपी. ठीक है, दिस इज अबाउट द वन फैक्टर्स, वन फैक्ट्स एंड ऑल दैट वी हैव. नेक्स्ट तो जीडीपी हो गया, जीवीए हो गया एंड ऑल. व्हाट इज द रफ वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम? देखो, रियल टर्म्स में देखोगे तो 90,000 के आसपास में है. नॉमिनल में देखोगे तो 1,10,000, 11,000. रफली याद कर लो 1 लाख. सो द रफ वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम वी हैव इज 1 लाख.
ठीक है, now we have is the trend of the GDP that we have. So the trend of GDP is, if the question comes that the GDP growth rate has steadily increased in last 5 years, wrong. It has steadily decreased in last 5 years, again wrong. Because we know, ये नहीं भी पता हो तो पता है यार कि GST आया था और demonetization आया था, तो ना तो steadily increase होगा ना steadily decrease होगा, common sense. So यहाँ से यहाँ तो increase हो रहा था till 2015. Then the adventurism of honorable Prime Minister started and then it started decreasing. अब यहाँ से increase हो रहा है. So last 5 years में ना तो increase हुआ और ना decrease हुआ with respect to the GDP. Exact terms में देखना है GVA तो यहाँ से देख लो. That in 2012, 13 and all it has increased and then it started decreasing. Because of mains में लिखना है तो because of the teething issues of the implementation of the major structural reforms of GST and demonetization. Pre में लिखना है तो me and you guys की क्या करके wrong करना है. Next we have is this GDP per capita. So GDP per capita in the dollar terms, if they ask the question that it has steadily increased, right or wrong? True. This we can see it has steadily increased in last 1 decade. So if the question comes that the per capita income has steadily increased, so it's correct. Side में लिख लेना. Then comes the question थोड़ा historical, after independence अगर पूछ लिया तो sometimes they ask even a question after independence क्या हुआ है, क्या decrease हुआ है. So we can say that the share of services sector after independence has increased. At the time of independence कितना था, जितना अभी agriculture का share है. Same exactly was the share we have is roughly. This is the sectoral contribution past and future we have. So agricultural share was more than 50%, 60% क्या, 55% था. So it was 55% at the time of the independence we have. And then the share of the agriculture has decreased. This data 14% is old. Before the GDP base year revision, अभी वो increase हो गया है. We have roughly is the 17% के आसपास में है. And then we have the services sector which has increased from 30% to double हो गया, वो 60% के आसपास में हो गया with respect to. And unfortunate this thing, manufacturing of the industrial sector that we have is the almost same गया. 5-6-7% का increase हुआ, nothing much. 20 से 25-26% rough value that you need to remember. This one graph you can draw in means as well. Will give you some 1 extra marks or something after independence वाला. ठीक है. Next we have is inflation. So inflation पे question नहीं आया है in prelims की trend CPI, WPI, decoupling of CPI, WPI क्या होता है, कौन सा index है and all. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. So with respect to whenever we are discussing any macroeconomic indicator, one of the classification is 2008. उससे पहले क्या हो रहा था, उसके बाद उसको लेके आते हैं जब इंडिया में रिसेशन आया एंड उसके बाद लेके आएंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के बाद. So 2008 the economic growth was very high. पहले समझ लो, बाद में फोटो खींच लेना. That the economic growth rate of India was highest during 2001 to 2007-8. The average growth rate was very high. So economic growth rate was 9%. So 2010 से पहले और 9 से पहले जितने भी questions आएंगे सब में increasing लगा देना, majority, because the fiscal space of the government was too much. The consolidation was too much because corporates profit कर रहा था, वो सब गवर्नमेंट को दे रहा था. So government expenditure आएगा तो वो भी इंक्रीज हो रहा था, गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन आ रहा था तो वो भी इंक्रीज हो रहा था, फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स मेट कर रहे थे हम, एटसेट्रा. आफ्टर दिस सो इकोनॉमिक ग्रोथ वाज 9%, इन्फ्लेशन वाज लेस. It was regarded as the dream run of the Indian economy these 6, 7, 8 years of first decade. FDI and FII was increasing because Indian economy was stable, increasing in almost double digits. So FDI, FII was increasing. And then bank credit was also increasing. Why bank credit was increasing? Because corporates को पैसा चाहिए था. क्यों चाहिए था? Because को expand करना था. Expand क्यों कर रहा था? Because demand था. और demand क्यों था? Because corporates were paying to the employees. So it was becoming a virtuous cycle. ये कॉर्पोरेट के पास पैसा बढ़ा तो उसने एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा दिया, उसने गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा दिया, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, सो गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीज द सोशल वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल दिस थिंग्स. फिर और लोगों के पास पैसा है, सो इट वाज अ वर्चुअस साइकिल वाज देयर. सो बैंक क्रेडिट वाज आल्सो मोर. अब अगर बैंक क्रेडिट पे क्वेश्चन आता है दैट बैंक क्रेडिट हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड,
और steadily decrease in last few years, both wrong है, because it was decreasing till 2016. उसके बाद में अभी slightly increase हो रहा है. Decrease क्यों हुआ था? Because twin balance sheet आया था, TBS आया था, तो banks became more cautious, so they stopped lending to anybody, irrespective, good है या bad है, कैसा भी client हो, they stopped lending to these guys. So steadily increase or decrease in bank credit, both wrong. But if it was in single digit for the first time in the history of independent India. 2017 के टाइम पे 16-17 में it was just 5%. That's it. इतना लेस सिंगल डिजिट में कभी नहीं हुआ. एट प्रेजेंट 12-13-14% के आसपास में चल रहा है. सो बैंक क्रेडिट वाज वेरी हाई टिल 2008 वी आर टॉकिंग अबाउट. देन वी स्टार्टेड द फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बट इंडिया रियलाइज्ड दिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आफ्टर 2011. इस टाइम पे तो गवर्नमेंट ने फिस्कल एक्सपेंशन दे दिया था, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया था, एमजी नरेगा इसी टाइम पे आया था, बिकॉज ऑफ विच द डिमांड इंक्रीज. So India's growth rate in 2009 was more than 8%. On the one side, Lehman Brothers and all, they filed bankruptcy. But India के case में our growth rate was 8.6% was there. So 2008 में पहुंचा ये 6.7%. Government gave fiscal stimulus because whenever the recession comes, demand becomes less than the supply. So how to overcome recession? Demand को increase कर दो. कैसे increase करोगे? Money with the general public you have to increase. Multiple ways. Different countries, they adopted different approach. For example, China started investing in infrastructure. So infrastructure में पैसा लगाओगे तो लेबर को wages दोगे तो demand create हो जाएगा. USA में they started selling the bonds at least rate of interest, 0 rate of interest पे USA started lending the loans to the infrastructure companies, to the normal bank, जिसकी वजह से a lot of dollar came in the economy. और वो डॉलर वहां से निकल के इंडिया में आ रहा था, डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा था. सो इन इंडिया रफली द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू आर गेटिंग इज 6, 7, 8, 10%. बैंक में एफडी भी कराओगे तो 7% का रिटर्न मिलेगा. सो लॉट ऑफ डॉलर वाज कमिंग फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री एंड इट वाज कमिंग टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ऑल्सो रिगार्डेड एज डॉलर सुनामी बाय दिल्मा रजफ. सो शी सेड दैट इट इज अ डॉलर सुनामी. दिस वाज द रीजन that the monetary policy of developed countries, वो तो उसका monetary policy है कि zero rate of interest पे हम bonds circulate करेंगे. So the monetary policy of developed countries was affecting the monetary policy of developing countries. So developing countries said we need a common platform where we can discuss कि भैया आप क्या करने वाले हो, US Fed क्या करेगा, RBI क्या करेगा, चाइना क्या करेगा. उसी के लिए G20 में एक सेपरेट मीटिंग होने लगा. उससे पहले G20 सेटअप हो गया था बट मॉनेटरी पर्पस के लिए यूज नहीं होता था. आफ्टर G20 देयर इज अ सेपरेट मीटिंग ऑफ द RBI, द सेंट्रल बैंक एज वेल एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड ऑल वी हैव. सो 2009 to 2011 the average growth rate again became more than 8.5%. And also this was the reason that you have to take back, the government should roll back the fiscal stimulus at the right time. अगर right time पे नहीं किया तो too much money will come to the economy, and when too much money will be in the economy, inflation. और एक बार inflation के trap में economy फंसा, then तो फिर it takes roughly 4 to 5 years plus one union government, that is UPA 2, to resolve the issue. So inflation was less, but अब तक तो जो mistake करना था वो हो चुका था. So outflow of the capital increased because जैसे ही inflation increase होता है तो in case of inflation the net rate of return becomes negative. Net rate of return या net interest rate is known as the nominal interest rate minus rate of inflation. So although you are 100 rupees you have deposited with the bank and then they are becoming 110, but the purchasing power of 110 has decreased because there is an inflation rate of 10%. So, जितना 100 में आप परचेज कर सकते थे उतना ही आप 110 में परचेज करोगे because items became costly. So the net return that you are getting is 0%. So these investors which invested in India before 2008, they started taking their money back. So a lot of outflow of FDI and FII in 2008 to 2012. And this was the reason that India became a member of informal club known as Fragile Five. So Fragile Five was a club which was being regarded as the countries
whose economy is too much dependent upon the foreign capital inflow. So if Indian economy is dependent upon FDI and FII, so there are chances that they will take back their money very quickly because FII is regarded as hot money. And this was the reason of 1996 ka Southeast Asian crisis wala and all. So India became a member of the Fragile Five. It's not a formal group, informal bus group clubbing kar diya tha ki Fragile Five. Then 2012 to 2014, so economic growth rate became less, 6.7%. Then Modi Sahab and all, they did a lot of efforts. पूरा base year change करना पड़ा इस value को increase करने के. Too much of groundwork. So 2011-12, the growth rate was 6.7%. Exports decrease हुआ, imports decrease हुआ. So अगर consistently increase decrease का question है export import wrong है. Outflow of the capital has increased. So if the question comes in last 5 years, the FDI or FII has steadily increased or decreased, wrong hai. Then FDI, FII has decreased, then depreciation of the currency. So at that time, the rupee started depreciating. You know, in 2010 or 11, the value of rupee was 45 bucks. Just 45. Tumhari generation ki baat hai wo. It was only 45 rupees. And then it started depreciating and least it reached to 69. 69 पे रघुराम राजन को लेके आए तो थोड़ा स्टेबल हुआ. फिर राजन साहब चले गए तो इट रीच टू 75 लेवल एंड थोड़ा सा वे भी 70 के आसपास में चल रहा है. सो इफ द क्वेश्चन कम्स इट हैज परसिस्टेंटली स्टडीली इंक्रीज रॉन्ग, स्टडीली डिक्रीज रॉन्ग. लास्ट 5 years में नो ट्रेंड इज देयर. बट द प्रॉब्लम इज दैट आवर इंपोर्ट इज inelastic. When I say import is inelastic, it means you have to purchase it. You don't have any other option. Usually what happens is when the price increases, thus demand decreases. Demand का negative होता है, but इसके केस में नहीं हो रहा because what we import, there is no alternative of that particular thing. Because roughly our 80% of our total consumption of crude oil is dependent upon import. So you have to import, be it the value was $112 per barrel. उस पे भी import कर रहे थे. And 2 years back it decreased to as low as $30. तब भी import कर रहे थे. So because our import is inelastic, current account deficit has increased and it became as high as 6.5%. ये तो हम बात कर रहे हैं 2012 to 14 की. It means हमारे 5 साल के range में ही है. But I also told you that 2 years back the crude oil prices decreased. But you know that in last 2 years the crude oil prices has again increased. अभी 60, 65, 70 के आसपास चल रहा है. So the question comes related to CAD. That CAD has persistently increased, steadily increased in last 5 years. Wrong. It has steadily decreased in last 5 years. Wrong. But if the question comes, it is at the highest level in last 1 decade. Wrong. $112 per barrel था उस टाइम पे. अभी तो $70 ही है per barrel, the value of the crude oil. It means highest तो नहीं होगा. अभी है 2.5%, 2.6% current account deficit. उस टाइम पे था 6.5%. So CAD was almost highest at this time, 2012-14. उसके बाद decrease हुआ because crude oil prices decrease हुए. अब फिर crude oil prices increase हुए तो again the CAD is increasing. It was as low as 0.6% and it is as high as at present in 2.5% के आसपास. This was also the time of the policy paralysis. वो सब UPA 1 का टाइम चल, UPA 2 का टाइम चल रहा था. स्पेक्ट्रम वाला सेल, कोल स्कैम, कुछ 2-4 घर से भी बना दिए. So a lot of issues were there. No, the topic on which they won the whole election, और उसमें 0% people they were convicted. Such a great, कहाँ गया वो उसका 1.76 lakh crore was the value which they identified and 0% conviction. Anyways, demand has decreased because this was the time when companies started sacking people. इस time पे नहीं था company के पास. A lot of private companies they started sacking. So demand decreased plus lot of scams came. This was also the time when the Supreme Court intervened. कर्नाटका में coal scam आया तो coal बंद करा दिया उन्होंने. In lot of other issues also, environmental के cases में lot of issues were there with respect to Supreme Court. Also land acquisition, you know कि 2012-13 में एक bill आया था. Bill क्यों आया होगा? Because Supreme Court ने कहा था. तो उससे पहले lot of scams of the land was there. So lot of scams came plus stalled projects. So यहाँ पे जो extra पैसा दिया था, this bank credit was too high. It was in double digit. This created a huge problem because India or Indian banks, they were involved in the subprime lending. Ab subprime lending in the sense the economic credibility of the customer is not good. Customer, be it individual, be it corporate, and still you are lending.
Now, why banks were lending is because they have to pay the interest, because a lot of deposit was taking place. And if they will not lend to anybody, they have to pay this 4%, जो interest minimum देना है savings account में, plus the administrative cost. Employee hire किया, office बनाया and all. So they started lending it. They had no option. So stalled projects हो गया at that time पे, because land acquisition, environmental. This was the time when TSR Subramaniam committee was set up and all. Twin balance sheet issue came, because यहाँ पे तो loan दे दिया, सब prime lending में involve हो गए. And then जैसे 2014-15 आया तो cash flow की problem हो गया. अब if you don't have the cash, you will not return the funds. So corporate stopped lending, giving back the money. And this was the time when the interest rate increased, because यहाँ से inflation increase हो रहा था. Again, and when the inflation increased, you must be remembering RBI has increased repo rate for continuous 5 times, 6 times, 7 times. Every 2 months they were increasing. अभी तो फिर भी every 2 months में एक बार RBI monetary policy आता है. पहले हर महीने में एक बार RBI monetary policy आ रहा था. So they consistently increase repo rate, reverse repo rate and all. So when RBI, there are multiple ways through which banks can arrange the funds. एक तो MyBor से ले लोगे आप, वो MyBid and all वाला रेट से ले लोगे. You can borrow from individuals, me and you guys, ABCD से. You can also take a loan from any other entity, insurance वाले से, etc. And one of the option is from the RBI. RBI has increased it, and RBI is regarded as the creator of the money. So when the creator of the money is increasing the interest rate, in सब का भी interest rate increase हो गया. And banks, they were facing the problem of TBS. So their economic credibility was not good. So nobody was depositing the funds in the bank. Even people, they started depositing in the land. They started investing in the land, gold and all, rather than investing in the bank. So banks, they became more dependent upon RBI. When RBI has increased the repo rate, so banks stopped borrowing from RBI. Because land तो कर नहीं सकते थे. Because यहाँ पे तो trust नहीं था. So they also stopped borrowing from the RBI was there. So this was the reason that RBI increased interest rate and all. And the inflation became in double digit, which costed the UPA to government. Anyways, next 2014 onwards, when Modi Baba came, so now this was the time when they signed inflation targeting monetary policy framework agreement they have signed, in which they said that the role of RBI is only one: control inflation. That's it, along with economic stability. Earlier they were adopting multiple indicator approach. पढ़ा होगा, employment भी उसी को देखना, export, import, foreign exchange and all. Now they said your role is only one, that is economic stability along with inflation targeting. This is the reason, bone of contention now at present. Now the government wants to decrease the repo rate, and RBI is saying नहीं, जैसे ही मैं repo rate decrease करूँगा वैसे inflation बढ़ जाएगा. And then you have amended, इसमें they amended RBI Act. And then this is the mandate. This is RBI has to do 4 plus minus 2%. So RBI is saying on the one hand you gave me a target which is statutory in nature. On the other side you are saying I should decrease the repo rates. This I can't do, so I have to resign. So he resigned. Anyways, economic growth rate again became more than 7%, and then the demonetization, GST and all these effects came, which decreased the demand for the temporary, for shorter duration and all. So now they have the option to either increase the demand or fudge the data. इसको बना लो, फोटो खींच लो, समझ लो, जो करना है कर लो. You have 30 seconds. MPFA is statutory only. Monetary Policy Framework Agreement is nothing but it is amendment of RBI Act. उसको एक्ट में अमेंड करके डाला उन्होंने. कोई तो प्रॉब्लम है. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता तो फिर चल जाता भाई. अब नहीं चलेगा. वो फिस्कल वापस ले लेना जो स्टिमुलस दिया था. When the government gave fiscal stimulus at that time ना, वो वापस ले लिया तो अब इन्फ्लेशन कम हो गया. कब 12 to 14. अरे इंटरनेशनल डॉलर प्राइसेस इंक्रीज हो गया ना. So when crude oil price increase हुआ तो डेप्रिशिएट हुआ. हाँ, क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा. ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, इट वाज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रॉब्लम. अनलकी चैप. ये स्लाइड समझ में आ गई तो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स वाले क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे, और जो डिराइव्ड क्वेश्चन होते हैं वो रॉन्ग नहीं होंगे.
कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट और वो G-Sec सिक्योरिटी रिलेशनशिप इकोसिस्टम बनाता है बस, वो कोई रिलेशन नहीं है. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, जीसेक इज गवर्नमेंट ओनली, बट गवर्नमेंट को आप सेल तो करोगे. इफ यू हैव टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी यू नीड अ मार्केट, जैसे हमारे लिए बना हुआ है ना फॉर द बॉन्ड मार्केट हु इज रिगार्डेड एज द एंटिटी, जो आरबीआई से एसबीआई में उसका ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया. नो, वो अलग है. The institutions which provide liquidity to the this thing, I to know, to money market instruments. Institution which provides liquidity to the money market instruments. It starts from D. Second word we have is F. Third we have is H. Last we have is I. DFHI, Discovered Finance and Housing India Limited. Earlier it was with RBI, now we have is with the SBI is there, which provides liquidity. When I say which provides liquidity, इसका मतलब हो गया वो OLX बनाता है, जिस पे परचेजर आता है और जिस पे सेलर आता है. Just like NSE and BSE, they provides liquidity to the capital market. Share market, आप Infosys का किसी का भी shares, if you want to buy and sell, you require a platform. That platform is the NSE and BSE and other merchant banks, we can say. ICICI Direct.com, Sharekhan.com, etc. बाकी सब ऐसे टाइप्स हैं. बाकी सब ऐसे टाइप्स. बाकी सब इंडिया के अलावा ये याद नहीं है मुझे, नॉट एबल टू रिकॉल. छोटा छोटा पता है, बट वो फिर अभी फ्रेजाइल 5 एज अ कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता. उससे पहले पिक्स, कंट्रीज एंड ऑल थे, तो सब चारों के नाम नहीं पता बिकॉज कंसेप्ट अभी पुराना हो गया. हाँ, बट G4 दैट इज रेलेवेंट. G4 के मेंबर यहाँ टिक रहे हैं बिकॉज इट इज यूएन का कंसेप्ट, ग्रुपिंग बनाया है कॉमन कॉज के लिए. कॉफी क्लब यू हैव टू रिमेंबर द मेंबर्स ऑफ, वो IR में पढ़ेंगे. ठीक है भाई, हैंडआउट्स में वी हैव इज, वी डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, वी डिस्कस सेकंड, वी डिस्कस थर्ड पॉइंट, वी सब सेक्टोरल शेयर विद ईच एंड मेजर सेक्टर वी हैव इज दैट विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर द शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक, बोलो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? स्टेडीली इंक्रीज, स्टेडीली डिक्रीज? नो, नथिंग. Increased, yes, so it has decreased. Then the share of fisheries, horticulture and all, it has almost decreased. Crops का share decrease हो गया है. Earlier crops had 66% and now crop is having 60%. So 6% decrease हो गया है in last 5 years, but that is not steadily. Common sense लगा लो, कभी कभी production of food grains जाता है 270 million tons, कभी जाता है 255, इस साल गया 279. It means consistently increase decrease is nothing, but it has decreased. The share of crops in Indian agriculture is decreasing. That's it. Then within industries we have is manufacturing, mining and electricity. So manufacturing is increasing but not steadily. Mining is decreasing, electricity is increasing but not steadily. decrease. Because Supreme Court का judgment के बहुत सारे issues हुए थे. बेटा हॉर्टिकल्चर इंक्रीज हुआ. स्टेडीली कुछ भी नहीं है इसमें से, जो होगा वो एक्सप्लिसिटली बताऊंगा. स्टेडीली इज नथिंग इन दिस केस, नथिंग इज स्टेडीली. हाँ, हॉर्टिकल्चर इंक्रीज हुआ है शेयर, क्रॉप्स डिक्रीज हुआ है. क्रॉप्स का शेयर, कॉमन सेंस लगाओ यार, क्रॉप्स से अच्छा, वो शायद मेंस में पढ़ाता हूं, दैट द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम क्रॉप्स, फूड ग्रेन इज 35,000 rupees per hectare, that's it. And then from horticulture you are getting 3 lakh rupees. किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा? 3 lakhs में. And then pulses में इससे भी कम है. Multiple reasons, because वो rainfed एरिया में होता है. 30,000 for the pulses we have. ये सब मेंस के टाइम पे पढ़ेंगे. These are relevant from means. Livestock increase. सब increase हो रहा है except crops. So crops का share decrease हो रहा है because we have to double the farmers income. सब increase. इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो रहा है. नहीं, स्टडीली नहीं.
बोलना है ही नहीं, क्रॉप्स कम हो रहा है, बाकी सब बढ़ रहा है, माइनिंग कम हो रहा है, सब एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। करेक्ट है, वो उसके लिए याद नहीं करना है, बता दिया, पढ़ लिया। अब कॉमन सेंस लगाओ, डबलिंग फार्मर्स इनकम करना है, डबलिंग करना है तो कैसे करोगे, जो जब से ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसका शेयर इंक्रीज करना होगा, इसीलिए सारी स्कीम्स हैं। फिशरीज में आप फिशरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रहे हो, आप मिशन फिंगरलिंग लेके आ रहे हो ताकि फिशरीज का सेक्टर इंक्रीज हो। और फिशरीज वाला शायद पढ़ाया होगा तुम्हारी क्लास में, दैट फिशरीज में इनलैंड पे इंक्रीज कर रहे हो, टारगेट लेके आए हैं फिशरीज पॉलिसी 2020 वाला कि 15 मिलियन टन बनाना है इसको, 11.2 था लास्ट ईयर, इस साल 12 है, तो इट इज इंक्रीजिंग। Next we have is inflation trend, CPI and WPI etc. So CPI and WPI is regarded as the headline inflation. What is CPI versus, पहले तो headline inflation and core inflation बता दो, जल्दी जल्दी बताओ यार, बेसिक एकदम। हाँ, core में only core items होते हैं, it means it shows the trend of inflation. So fluctuation वाले items हटा दो इसमें से, fuel हो गया, agriculture हो गया, वो सब हटा देंगे। Then CPI and WPI में whether it is possible that CPI increase हो रहा हो, WPI decrease हो रहा हो, हाँ, because the constituents, the item is different, plus you are measuring the prices at different level, ये प्रोडक्शन लेवल है, ये फिर होलसेल पे जाता है और ये फिर रिटेल पे जाता है। तो यहाँ पे मेजर करते हो तो उसको CPI कहते हैं, यहाँ पे WPI कहते हैं, यहाँ पे PPI कहते हैं। PPI के केस में प्रोडक्शन के टाइम पे बिकॉज इट इज अनऑर्गेनाइज्ड, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक द डेटा एवरी मंथ, इसलिए PPI इंडिया में नहीं है, अदरवाइज PPI इज द बेस्ट इंडेक्स। सो कुछ कुछ सेक्टर्स में है, वी हैव रेलवेज एंड ऑल में वी हैव PPI। नेक्स्ट WPI वाज अर्लियर बीइंग यूज्ड बाय RBI to decide its monetary policy, now it has been shifted to CPI, all India we have, ठीक है। Then we have core inflation and food inflation, we discussed core inflation versus food inflation and all with respect to CPI and with respect to WPI is there. Then general inflation versus food inflation is there. So general inflation is steadily increasing, no. Food inflation is steadily increasing, no. Nothing, no trends in case of general and all. Next we have is savings and investment. So savings has been persistently decreased, right or wrong? Yes. Savings में steadily decrease है हमारे पास, हाँ, last 5 years obviously. मैं भी यही कह रहा हूँ, it has steadily decreased in last 5 years. क्वेश्चन 5 का बोल रहा हूँ, पसंद नहीं है 10 कर लो। और 2004 से डिक्रीज हो रहा है बेटा, हाँ, 2004 2008 तक हाईएस्ट पीक पे गया था, 2004 to 2008 it has increased 11%, both savings as well as investment. Last 5, 6, 7 years से it is decreasing. So अगर last 10 years का आएगा, so it will not be correct, because इंडिया में रिसेशन आया था 2010 onwards, उस टाइम पे इंक्रीज ही हो रहा था, बट स्टेडीली इंक्रीज नहीं था, बट इंक्रीज हो रहा था एट द टाइम। If we can see that in last 5 years it has consistently decreased. So in case of savings it has steadily decreased, in case of this also it has steadily decreased, except for this year, but इस साल का पूरा डेटा नहीं आया है अभी, only we have 2018-19 के advance estimates आए हैं। So according to the advance estimates it has increased the investment, but the actual data we don't know. So if in the prelims it comes it has steadily decreased in last 5 years, करेक्ट कर देंगे उसको, हाँ, इन्वेस्टमेंट को। सो इन्वेस्टमेंट हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड, सेविंग्स हैज ऑल्सो स्टेडीली डिक्रीज्ड, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स बोथ स्टेडीली डिक्रीज्ड इन लास्ट 5 years. Demonetization and savings, demonetization is different, savings is different. Demonetization was just one event in which you were forced to deposit this type of currency, and then you have taken back that particular currency, because of which we have cash to GDP ratio has increased. It's not less than the pre-demonetization wala time. हाँ, ग्रॉस कैपिटल, उस पर ठीक है, उसका एक वीडियो पढ़ा है, इको सर्वे के टाइम पे कवर कराया था, और भी आइटम्स होते हैं उसमें। इसके बाद next we have is tax receipts. If the question comes that our tax to GDP ratio has steadily increased, percentage terms, union government we are talking about,
that the tax to GDP ratio has steadily increased in last 5 years. Right or wrong? अभी इस साल वाला 18-19 भी काउंट करोगे तो राइट हो जाएगा. So it has steadily increased in last 5 years. Steadily increased in last 10 years is wrong. Your decade is wrong. But last 5 years में it has steadily increased. So it is yes. 5 साल में increase हो रहा है. Total tax to GDP. Same है, मान काउंट कर लेते हैं उसको. Steadily increase. हाँ हाँ. Steadily को काउंट. नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस. Next, within this union government tax to GDP ratio, now comes direct tax or indirect tax वाला. So direct tax or indirect tax is almost same. कि last direct tax or indirect tax is almost same. Both are roughly 6% and 6%. But if the question comes कि दोनों में से कुछ भी steadily increase हुआ है तो नहीं. Their share we are talking about. This is their share in the tax collection. कि डायरेक्ट टैक्स का शेयर इन टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर इन टैक्स कलेक्शन. देखो दो चीजें हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो और एक है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर इन द टोटल टैक्स कलेक्शन वी हैव इज ऑलमोस्ट 50% के आसपास में है. एंड देयर इज नो सब ट्रेंड एक्चुअली कि डायरेक्ट टैक्स में इंक्रीज हुआ या डायरेक्ट टैक्स में स्टेडीली इंक्रीज हुआ या स्टेडीली डिक्रीज हुआ. नथिंग इज देयर. ये लिख लेना सब, अभी तो सब इजी लगेगा, बाद में थोड़ा थोड़ा भूल जाओगे. दोनों में कहां हो रहा है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लास्ट 5 इयर्स में स्टेडीली कुछ नहीं हो रहा है. 2 साल का अभी आ रहा है. इसके अगले वाला ये है कि आफ्टर दिस जीएसटी विच केम, नाउ तो वी हैव इन लास्ट 2 years इट हैज डिक्रीज बिकॉज जीएसटी इज अ रिफॉर्म इन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन. सो मोर we can say that buoyancy in the indirect taxes. Buoyancy का मतलब क्या होता है? अरे नहीं, buoyancy of a tax means कि अगर GDP increase हो रहा है 1% से, so tax revenue अगर more than 1% है तो tax buoyant है, less than 1% है तो it is imbuoyant. It is not a buoyant tax we have. Earlier taxes like service tax and all, they were very high buoyancy. Now we have after GST is also having a very high buoyancy is there. So both it is increased. But after this particular GST, now we have this in last 2 years, the share of indirect tax has increased drastically in comparison to the direct tax collection we have. So last 2 years में आएगा तो फिर more growth rate in the indirect taxes and less growth rate in the direct taxes. That does not means कि direct tax collection has decreased. वो नहीं है. Direct tax has also increased, but the growth rate in comparison to indirect tax is less. समझ में आ रहा है? Yes or no? उसका परसेंटेज शेयर एक्चुअल में देखोगे तो इट इज मोर बिकॉज द बेस हैज इंक्रीज्ड. अगर पहले हम 20 लाख करोड़ टोटल कलेक्शन होता था जिसमें से डायरेक्ट टैक्स था सपोज करो 7 लाख करोड़, तो वो 7 से 7.2% हुआ, बट वो 20 से 24 लाख हो गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर इंक्रीज हो गया. इसलिए दिस 5% इज द शेयर ऑफ अर्लियर 20%, नाउ 24 लाख वाला के केसेस में, तो इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है. बट what I was asking is कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज इंक्रीज और नॉट. वो इंक्रीज हो रहा है. पहले 7 लाख था, अब 7.5 लाख है, अब 8 लाख है, अब 8.5 लाख है, उसमें इंक्रीज है, बट उसका शेयर इन टोटल टैक्स कलेक्शन इज डिक्रीजिंग बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स उसका बेस इंक्रीज कर देता है. यस और नो? कुछ आ रहा है समझ में? अरे नहीं आ रहा तो पूछ लेना, नहीं क्लास वेस्ट है मेरी आज. बेटा देखो, पहले आप टोटल कलेक्शन था आपका सपोज करो, बाकी सब एक्चुअल वैल्यूज भूल जाओ. दिस द टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विच वाज 20 लाख. उसमें था डायरेक्ट टैक्स की वैल्यू थी 7 लाख. इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू होगी कितना हुआ? 13 लाख. ये था फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में आई एम सेइंग जीएसटी आ गया. अब जीएसटी आ गया तो नाउ इट इज 24 लाख. उसमें डायरेक्ट टैक्स हो गया 7.5 लाख और बचा हुआ हो गया इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ व्हाट दिस 5.06 सिग्निफाइज इज 7.5 divided by 24. वो तो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज अर्लियर इट वाज 7/20 which is more, but in actual terms तो डायरेक्ट टैक्स इज इंक्रीजिंग
because earlier it was 7, फिर 7.5, फिर 8, फिर 8.5, but the base is increasing. The share of indirect tax has increased. So if the question comes that the share direct tax to GDP ratio has increased in last 5 years, is correct. It has steadily increased is also correct. But the share of direct tax in total tax collection is less in last 2 years. But it has steadily decreased in last 5 years is wrong. समझ में आया? नहीं है, वापस बताता हूं. If the question comes that there has been a steadily increase in the share of direct tax collections, that's it. किसी से परसेंटेज नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में पूछा है कि 2014 का डायरेक्ट टैक्स, 15 का डायरेक्ट टैक्स, 16 का डायरेक्ट टैक्स, 17 का डायरेक्ट टैक्स, उसमें स्टडीली इंप्रूवमेंट है क्या? यस. नाउ कंपेयर दिस डायरेक्ट टैक्स, दिस शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स विद द इनडायरेक्ट टैक्स या टोटल टैक्स कलेक्शन, उसमें स्टडीली इंक्रीज है क्या? नहीं, उसमें स्टडीली इंक्रीज नहीं है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर इंक्रीज हो गया. इनडायरेक्ट टैक्स अर्लियर वाज गिविंग लेस, अब जीएसटी आ गया तो उसकी बायंसी ज्यादा है तो मोर टैक्स कलेक्शन हो गया. तो ये जो टोटल बेस बन रहा है, द टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर इंक्रीज होता जा रहा है. तो अगर आप ऐसे ऐसे कंपेयर करोगे डायरेक्ट टैक्स को तो इट हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड. बट इफ यू विल कंपेयर द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू टोटल टैक्सेस, इट हैज डिक्रीज्ड इन लास्ट 2 years. वैल्यू में भी बढ़ा है बेटा, परसेंटेज में भी बढ़ा है, डिपेंड करता है कंपेयर किसके साथ कर रहे हो. अगर जीडीपी के साथ करोगे तो भी बढ़ा है, एक्चुअल कलेक्शन देखोगे तो बढ़ा है. बट प्रॉब्लम है अगर आप उसको टैक्स कलेक्शन से कंपेयर करोगे तो टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा बढ़ गया तो वो कम हो रहा है, वो प्रॉब्लम है बस. सो अगर डायरेक्ट टैक्स टू डायरेक्ट टैक्स कंपेयर कर रहे हो तो इट इज इंक्रीजिंग स्टेडीली, इट इज इंक्रीजिंग लास्ट 5 years. बट इफ यू विल कंपेयर इट्स ग्रोथ रेट विद इनडायरेक्ट टैक्स वाला तो उसमें स्टेडीली इंक्रीज नहीं मिलेगा आपको. अभी भी नहीं आया समझ में? अरे पैसा दिया वापस नहीं देंगे, आई नो देम. नहीं दिया तो वापस पूछ लो. आई डोंट वांट अ कंडीशन की जिसमें नहीं आया समझ में, वो समझ के ही जाना पड़ेगा. यू डोंट, बिकॉज बेटा वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है. ले तू ये बढ़ता हुआ देख, अब समझ ले इसको. आईएएस नहीं चाह रहा था मैं कि और कंफ्यूज हो, बट आप नहीं मानोगे. लो देखो बेटा, इसमें समझो सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स, इसको भी छोड़ो. डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो वी हैव इज द बायंसी वी हैव. ये बायंसी है, ये एलिजिबल नहीं है एक्चुअली, ये बायंसी है. दिस इज व्हाट वी हैव इज द बायंसी ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस वी हैव. सो इट्स मोर देन 1 एंड ऑल. ठीक है, अब इसको हटा के यहाँ पे आओ. दिस इज द कॉर्पोरेट टैक्स एंड दिस इज पर्सनल टैक्स. डार्क वाला वी हैव इज द कॉर्पोरेट टैक्स. स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है क्या? यस, इट हैज स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट 5 years. पर्सनल इनकम टैक्स स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है क्या? यस, वी हैव इज. बट हियर यू आर कंपेयरिंग डायरेक्ट टैक्स विद द प्रीवियस ईयर. So direct tax of this year, direct tax of last year, direct tax of last year, previous year we have it. So ये तो steadily increase हो रहा है. But when you will compare direct tax with total tax collection or indirect tax, उसमें problem होगा. Because indirect tax is increasing at a faster rate. तो वो total wholesale tax collection को ज्यादा बढ़ा रहा है in comparison to the direct taxes we have. Direct tax का जो share है पूरी tax collection भी increase हो रहा है. last 5 years में steadily नहीं, जीएसटी आया तभी से बढ़ रहा है बस, नहीं तो नहीं हो रहा. ड्रास्टिकली किया जाता है. ड्रास्टिकली व्हाट? इंक्रीज डिक्रीज? किसका? डायरेक्ट टैक्स का? इनडायरेक्ट नहीं, ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हुआ. 2 ही साल में तो बढ़ा है. ड्रास्टिकली इंक्रीज कुछ भी नहीं है. आफ्टर जीएसटी भी ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हुआ, बिकॉज जीएसटी में तो अभी टीथिंग इश्यूज चल रहे हैं ना, अभी तो कलेक्शन ही नहीं आ रहा है जीएसटी का. टारगेट है गवर्नमेंट का 1.2 लाख करोड़ एवरी मंथ जीएसटी कलेक्शन, मिल रहा है उसको 1 लाख करोड़ के आसपास में. सो ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हुआ. ये समझ में आ गए? इफ यू आर कंपेयरिंग डायरेक्ट टैक्स ऑफ ऑल दीज ईयर्स, इंक्रीज स्टेडीली इंक्रीज, बट डायरेक्ट टैक्स विद टोटल टैक्स नो. उसमें स्टेडीली पूछ रहे हो या नॉर्मल? नहीं, स्टेडीली इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस में नहीं हुआ, बिकॉज टारगेट इज मोर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ये इनइक्वालिटी है. 7 पॉइंट जो था गिनी कोफिशिएंट वाला हैंडआउट्स में है. सो इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज इन लास्ट 5 years. यस, स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट 5 years. नो, नो स्टेडीली इंक्रीज
इनइक्वालिटी में। HDI वाला खुद से पढ़ लेना, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स and then poverty trends and all is inequality only. कि poverty trends, earlier we were measuring poverty on the basis of which committee? Tendulkar committee has been replaced by Rangarajan committee we have it. So Tendulkar committee said 21.5%. Rangarajan ने उसको increase करके 30% के आसपास में कर दिया था. But the problem is you cannot compare circle with a square. उसका methodology अलग था तेंदुलकर का और इसका मेथोडोलॉजी अलग है. सो इफ द क्वेश्चन कम्स कि स्टडीली इंक्रीज और डिक्रीज, नहीं, वी डोंट नो. नो स्टडीली इंक्रीज, नो स्टडीली डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ द पॉवर्टी ट्रेंड्स एंड ऑल वी हैव. ये लेबर फोर्स वाले के लिए एक वीडियो है यूट्यूब पे, शायद 15-20 मिनट का ही है बस, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया करके है, उसको देख लेना. You will understand the difference between these nomenclatures, types of unemployment and all we have is. Unemployment by MK Yadav सर्च करोगे मिल जाएगा. बोल बेटा. स्टडीली नहीं बढ़ी ना. हाँ हाँ, इनइक्वालिटी, बट स्टेडली नहीं होगा. हाँ, डिक्रीज होगा. लॉट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स आएगा एंड ऑल करके, तो द परसेंटेज है. ऑल्सो इनइक्वालिटी व्हेन वी से, सो यू हैव टू कंपेयर टॉप 10%, 20%, 50% एंड ऑल. बट हाँ, बट इफ द क्वेश्चन कम्स कि गिनी कोएफिशिएंट इंक्रीज हो रहा है, तो गिनी कोएफिशिएंट इंक्रीज हो रहा है. गिनी कोएफिशिएंट इज ओनली मेजरिंग one way of inequality we have. Gini coefficient is a tool to measure inequality. But comparison it varies because sometimes the countries include these 5 things जिससे poverty decide हो रहा है. फिर रंगराजन ने आके कहा कि नहीं, सिर्फ इससे नहीं होगा, आपको प्रोटीन भी काउंट करना पड़ेगा इसमें, आपको कार्बोहाइड्रेट भी काउंट करना पड़ेगा इसमें, तो फिर आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. तो वो नहीं हुआ. If the question comes with respect to Gini coefficient, so yes. If the question comes with respect to poverty, so नहीं. हाँ, गिनी स्टडीली इंक्रीज हुआ होगा. गिनी कोएफिशिएंट सारे ही डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया, चाइना एंड ऑल में गिनी कोएफिशिएंट इज इंक्रीजिंग. इनइक्वालिटी, अरे एमजी नरेगा तो लोवेस्ट स्ट्रेटा में काम करता है यार. उसमें टोटल इनइक्वालिटी हम टोटल सोसाइटी, टोटल इकोनॉमी का कंपेयर करते हैं, उसमें नहीं. नहीं, बोला होगा तो मिस्टेक से बोला होगा. But steadily it has increased. Gini coefficient has increased. And at the time of, also if the question comes 1991 के बाद, Gini coefficient has drastically increased. Answer is yes. उस टाइम पे 0.32 के आसपास में था, अब 0.45 पहुंच गया है. It measures the inequality in the society. So almost 50% increase हो गई है inequality in comparison to 1991, which is also regarded as a negative of the LPG reforms. And it has increased, or this inequality has increased, or Gini coefficient has increased in majority of the developing countries. सिर्फ इंडिया का केस नहीं है, चाइना में इंडिया से ज्यादा फास्टर रेट पे इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रहा है. हाँ, गिनी कोएफिशिएंट, बिकॉज इनइक्वालिटी कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई फिक्स नहीं है कि आप क्या कहोगे इनइक्वालिटी मेजरमेंट के लिए. सो उसमें नॉर्मल है. वी डोंट हैव अ क्वांटिटेटिव टूल, वी ओनली हैव गिनी कोएफिशिएंट इज वन टूल. सो गिनी देखेंगे तो उसमें इंक्रीज है, बट इनइक्वालिटी देखेंगे तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट नो कि इनइक्वालिटी किस किस पैरामीटर्स के बेसिस पे आप काउंट कर रहे हैं. इन जनरल इंक्रीज हुआ है. बट टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होगा. कैन पूछ रहे हो या ऑलवेज पूछ रहे हो? कैन तो होगा ही, कैन लाइकली एंड ऑल इंक्रीज होगा. बट जैसे अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है बट अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा. उसी को कहता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, विच इज डिपेंडेंट अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स. अगर आपके इकोनॉमी में लेबर फोर्स नहीं है तो फिर कितना भी जीडीपी इंक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा. आपकी इकोनॉमी में बैंक लोन नहीं दे रहा है, क्रेडिट नहीं है, तो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हो. सो इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स. कैन या लाइकली तो करेक्ट है, बट 1-to-1 रिलेशनशिप अगर ऑलवेज पूछेगा तो नो. कि अगर व्हेन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीजेस इन एन इकोनॉमी, द इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो आल्सो इंक्रीजेस, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बट इफ the tax to GDP ratio is increasing in the economy, will likely increase the investment to GDP ratio, is a correct statement we have. नहीं, उसके 3 कंपोनेंट हैं, देन इनइक्वालिटी, देन स्कूलिंग, देन ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं एंड ऑल. हाँ, हर का मतलब
तीन इंडिकेटर का अलग देखना है, इनइक्वालिटी IHI का अलग देखना है, वुमेन का अलग देखना है, उसके अंदर जो सब कंपोनेंट हैं वो अलग से देखने हैं, स्कूलिंग के कितने नंबर ऑफ ईयर्स होता है वो भी देखना है, सब देखना है, वो सब पढ़ना है। टॉप 1% का एब्सोल्यूट वेल्थ इंक्रीज हुआ लास्ट 2 डेकेड्स में, बट जो मिडिल 40% उनका एब्सोल्यूट ग्रोथ 50 to 90% वाला जो परसेंटाइल कह रहे हो आप, 10 to 50%, बॉटम 50% का बढ़ रहा है, टॉप 1% का बढ़ रहा है, बट 10 to 50% में 0% ग्रोथ है लास्ट 2 डेकेड्स से दिया हुआ है। सर इफ यू सी लाइक 90% ऑफ द पॉपुलेशन में तो ये वर्ड इंक्रीज हो रही है। नहीं, वी कैन नॉट जनरलाइज ना, एवरेज कैसे ले लोगे? 0 to 100 परसेंटाइल में हम एवरेज कैसे ले लेंगे? वी कैन नॉट एवरेज इट आउट। हाँ, इसीलिए मैं स्टडीली नहीं कह रहा हूं, इसीलिए मैं नॉर्मल कह रहा हूं। इफ नॉर्मल शी आस्क्स की इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, बट स्टडीली इंक्रीज हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर ना। स्टडीली का मतलब हो गया कि वो टोटल में कंपेयर होना चाहिए। अगर परसेंटाइल वाइज पूछेगा देन वी कैन गो विद दिस थिंग, बट अगर इन जनरल इफ दे आर आस्किंग इनइक्वालिटी तो स्टडीली इंक्रीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ये कुछ बोरोइंग्स एंड ऑल, मेजॉरिटी ऑफ द मनी कहां से आता है, कैसे आता है, ये लेबर फोर्स वाला वो वीडियो देख लेना। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम अगेन टू डिस्कस दिस थिंग। शेयर ऑफ वुमेन, शेयर ऑफ इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वुमेन का डिक्रीज हो रहा है ना, वो उस वीडियो से हो जाएगा 30 मिनट्स में। दिस इज व्हाट द बोरोइंग ऑफ इंडिया वी हैव इज रफली। पैसा कहां से आता है ये बजट में शायद कवर किया था हमने, राइट? नहीं है तो बजट की क्लास भी फ्री है, वहां से देख लेना एग्जैक्टली बजट में क्या क्या है, how the money, from where all sources we are getting the money and from where all sources the government expenditure is there. Then we have is this fiscal deficit trend is there. In case of the fiscal deficit, इसको छोड़ो, नेक्स्ट वाले से चलेंगे। यस, इस वाली लाइन को भूल जाओ, दिस बजट एस्टिमेट वाला को, इसको भूल जाना। We have. Now the question comes that our fiscal deficit has steadily decreased in last 5 years. Right or wrong? Yes. इसको याद रखना। It has steadily decreased in last 5 years. Last 1 decade आएगा तो, sorry, last 10 years आएगा तो नहीं है। Steadily decrease 10 years में नहीं हुआ, because after recession के टाइम पे हमारा increase हुआ था। Fiscal deficit in last 10 years has steadily decreased? No. Last 5 years it has steadily decreased? Yes. Then comes revenue deficit. So revenue deficit in last few years, in last 5 years has steadily decreased? No. इसको कहाँ है भूलने के लिए, इसको भूल जाना है बस। So 2.1% हुआ, 2.6% हो गया 17-18 में। So steadily decrease नहीं हुआ, यहां तक हो रहा था, इस पर नहीं हुआ। So only fiscal deficit has steadily decreased, बाकी किसी में कुछ नहीं है। Only in case of the fiscal deficit you need to remember, बाकी सब में there is a sine wave, एक ही याद कर लो बस। अरे नहीं, ये है इसका बजट एस्टिमेट और ये उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट है। सो बजट एस्टिमेट को भूल जाना है, तो सर्वे में यही डेटा था। इस साल तो सर्वे आया नहीं, सो वी डोंट हैव द न्यू डेटा। हाँ, सो 3.5 और उसके बाद यहां से सीधा यहां चले जाओ। हाँ, तो उसको स्टेडीली में काउंट कर लेंगे। हाँ, जाता तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं, बट हाँ ठीक है। देन वी हैव इज गवर्नमेंट डेट। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एनके सिंह वाला, दे आस्क्ड अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, 40% शेयर इसका, 20% शेयर इसका। दे रिवर्स दीज टू फैक्ट्स। सिंपल सा लॉजिक है, शायद इको की क्लास में तो फैक्चुअल बताया होगा। If the question comes that the government debt to GDP ratio has steadily increased, wrong. Steadily decreased, wrong. But it is decreasing, yes. It is on a declining trend, yes. So when we say government debt, it means both domestic as well as outside. When I say total borrowings of the government, तो डिटेल में नहीं जाता हूं, it includes both domestic as well as the international borrowings we have. But when I say the total borrowings, total external borrowings of India, वो कितना है roughly?
वो गवर्नमेंट के टोटल बोरोइंग का फॉरेन बोरोइंग 5% है, उसमें अभी इतना लेवल पे मत जाओ. फर्स्ट आई एम आस्किंग यू, इफ द टोटल बोरोइंग्स ऑफ इंडिया, इट मीन्स बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट वी हैव इज, तो टोटल बोरोइंग कितनी है हमारी, एक्सटर्नल बोरोइंग ऑफ इंडिया, या परसेंटेज टर्म्स जीडीपी पता हो, कुछ भी पता हो. खेल लो और 2-4 में. हाँ, 20% के आसपास में भी है. ब्रॉडली याद करेंगे, इज रफली इक्विवेलेंट टू इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है, ऑलमोस्ट. सो $500 बिलियन, 450 से 500 ही हमारा इंपोर्ट है और 450 से 500 के आसपास हमारी टोटल बोरोइंग्स है इंडिया की. ठीक है. एक्सपोर्ट की वैल्यू कितने इंडिया के, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज $300 बिलियन एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज, ये पहले कभी बताया, 160, इंपोर्ट इज 60, तो टोटल वहां सरप्लस बन जाता है $100 बिलियन के आसपास का. उसको हम कंपनसेट कर देते हैं मर्केंडाइज डेफिसिट से, जो बच गया वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया. ठीक है. सो वी हैव टोटल बोरोइंग्स ऑफ इंडिया, टोटल फॉरेन बोरोइंग्स ऑफ इंडिया इज $500 बिलियन, रफली 485-490 के आसपास में है, बट $500 बिलियन. अब कुछ तो प्राइवेट ने बोरो किया है, कुछ गवर्नमेंट ने बोरो किया है. अब उसमें एज अ डायग्राम से इसकी प्राइवेट की बोरोइंग ज्यादा होगी, किंगफिशर एयरलाइंस. गवर्नमेंट की बोरोइंग कम है. कितना कितना परसेंट शेयर है इसका, 80-20. प्राइवेट सेक्टर हैज बोरोड 80% and government has roughly borrowed 20%. Now when you are borrowing from outside India, there is one more classification, short term borrowing and long term borrowing. Irrespective किसने borrow किया है, private करे government करे, the liability lies with the government only ultimately. So private borrowing is equivalent to our long term borrowing, वो भी 80% है long term borrowing भी, और short term borrowing भी हमारी 20% है of the total borrowings we have. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी है, इररिस्पेक्टिव इंडिया से कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो इट्स वैल्यू इज, जो एनके सिंह ने कहा था, गवर्नमेंट की लायबिलिटी. फिर उसको क्लासिफाई करेंगे सेंटर और स्टेट से. ये तो हो गया आपकी आउटसाइड इंडिया फॉरेन बोरोइंग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल बोरोइंग्स ऑफ इंडिया, टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. कुछ तो बाहर से बोरो कर रहा है, ये 20% ऑफ 500 रफली मेक्स इट $100 बिलियन. सो 100 बिलियन तो बाहर से बोरो कर रहे हो आप, एंड देन कुछ आप विद इन इंडिया बोरो कर रहे हो. सो दिस इट्स वैल्यू इज 69% लगा लो ऑफ जीडीपी इज द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ वी ऑल्सो नो वी हैव आर्टिकल 292, states cannot borrow unless and until they get the permission of the central government. Also, if they have to borrow from outside India, the consolidated fund of India is the mortgage, तो वो तो सेंटर के पास है, so you have to take the permission of the central government only. Now you need to classify this total government borrowing into center अलग और state अलग. That's it. So this 69% is divided into center and state. इसमें यूनियन गवर्नमेंट का टोटल लाइबिलिटी है 49%, 48-49%, और स्टेट का भी है इज द 20% के आसपास में. दिस इज हाउ दिस टोटल लाइबिलिटी इन ऑल इज डिवाइडेड. टोटल लाइबिलिटी ऑफ इंडिया, इट मींस बाहर से जितना बोरो किया इज $500 बिलियन. गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया, 20%, $100 बिलियन. ना गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम विद इन इंडिया. So within India plus outside, सब कुछ मिला के गवर्नमेंट लाइबिलिटी इज 69% ऑफ जीडीपी, जिसको डिक्रीज करना है 60% ऑफ जीडीपी से बाय 2022. यूनियन का है 49-48% एंड स्टेट वी हैविंग इज द 20% के आसपास. दिस आई एम टेलिंग यू ओनली द ब्रॉड वैल्यूज. 1-2-3% ऊपर नीचे चलेगा, इट हैज इंक्रीज्ड एक्चुअली. नेक्स्ट कम्स वी हैव इज द करंट अकाउंट डेफिसिट. So in case of the current account deficit, it was as high as 6.5%. इसमें कुछ issue होगा. This was more than 6% actually. If the question comes, CAD has persistently increased. Wrong, I told you. CAD has steadily decreased in last 5 years. Again, wrong we have is. Earlier it was decreasing. But in last 2 years, 17, 18, 19 it will be 2.5% or something.
न स्टडीली डिक्रीज हुआ न स्टडीली इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द करंट अकाउंट डेफिसिट वी हैव. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इंडियाज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट has steadily increased or steadily decreased in last 5 years. Export decreased. Question is steadily decreased. Question is steadily decreased. Yes or no? Absolute में भी steadily decrease नहीं हुआ बेटा. As terms of GDP. अरे नहीं, वो भी steadily नहीं हो रहा है. Steadily नहीं हो रहा है. Neither in export nor in import we have steadily decreasing, because sometimes it was as low as -40% से decrease हो गया था. So increase हो गया था sorry. So sometimes it has increased by some 40% from $179 billion से हो गया सीधा $250 billion, and then it increased by 22% to 306. Then it decreased, then increased, then decreased, then further decreased, and then further increased. So if the question comes in real terms, exports has steadily increased? No. In percentage wise also export has steadily increased? No. Import के केस में भी neither in percentage terms nor in the actual terms. In export and import no trend. Export भी steadily increase भी नहीं हुआ, steadily decrease भी नहीं हुआ. So you don't have to remember anything. आज की क्लास के बाद घर जाके क्या करना है, बस जो steadily वाले हैं उसको क्रैम कर लेना है. 5, 6, 7 ही पॉइंट है, बस खत्म. बाकी सब छोड़ देंगे. Next comes the question that foreign exchange reserve. If the question comes that our reserves in India has steadily increased or steadily decreased in last 5 years, right or wrong? Yes. 5 years कहोगे तो yes कर देंगे, और 10 years कहोगे तो yes नहीं कर सकते. You also know recession आया था तो decrease हुआ ही होगा. Similarly we have it. हाँ अभी present year count करोगे तो decrease हो जाएगा यार. Present year count करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर दिस ईयर. अगर दिस ईयर को आप हटा दो, उससे पहले स्टडीली इंक्रीज हो रहा है. तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे. 18-19 बेटा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, 31 मार्च को फिनिश हो गया. नहीं, दिस ईयर व्हेन आई एम सेइंग इज आई मेंट 18-19 ओनली, कि 18-19 में डिक्रीज हो गया. 17-18 तक ठीक था, 18-19 में डिक्रीज हो रहा है. 17-18 तक इट वाज गुड. इट बिकेम 390 समथिंग एक्चुअली. सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द इवैल्यूएटर कि वो इस साल को काउंट करेगा या नहीं करेगा. और तुम लोग देख लो अपना भाई. आई कैन नॉट टेक ए गारंटी कि सर आपने बताया था. मैंने सारे सर्कमस्टेंसेस बता दिए हैं, तो अपना ऑप्शन देख लेना. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. यू नो उसके 4 कंपोनेंट होते हैं. ये सब क्वेश्चन पहले आया हुआ है. वी हैव इज सो फॉरेन करेंसी इज हैविंग मेजॉरिटी 95% तो फॉरेन करेंसी है. एंड देन वी हैव gold reserve, SDR we have in the reserve tranche etc. and all we have. And then this currency is maintained in the terms of these US dollar, we have pound, euro etc. and all. Then we have deposits with the central bank is being counted. Then the deposit with BIS, Bank of International Settlement of Basel norms wala, Basel and all ke liye. Deposits with IMF etc. and all is being counted under this foreign currency assets and all we have. Then we have is total external wale mein. So long term is 80%, short term is 20% that we discussed broadly. In case of this long term, majority is the external commercial borrowings. पढ़ा होगा ना कि when this balance of payment is divided into current account and capital account, capital is divided into investment and others. Others में we have is NRI deposit, external commercial borrowing, multilateral and bilateral borrowings etc. So external commercial borrowing is majority in terms of the long term. When I say ECB, it does not means कि government PSUs की borrowing नहीं है. Yes, उसकी भी है. Any separate commercial legal entity of government, SBI borrow करेगा, ONGC borrow करेगा, will still be counted under the external commercial borrowing. When the government is borrowing, is regarded as the bilateral or multilateral borrowing and lending we have. इसीलिए जो कंसेशनल लोन मिलते हैं वो बायलेटरल और मल्टीलेटरल में मिलेंगे हमेशा. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में वी डोंट हैव दिस कंसेप्ट ऑफ द कंसेशनल लोन्स.
So bilateral debt, etc. and all. And next we have is the NRI deposits. So ECB is 40% and NRI deposits is 25%. This is what the weightage of NRI deposits in India. And this is the reason that the interest rate of NRI deposits is decided by RBI. इसका strategic significance है. Because अगर NRI deposits का rate of interest banks decide करेंगे, so RBI will not be able to manipulate. उसमें problem क्या होगा? When currency will depreciate. In that case you require dollar. कैसे आएगा dollar? You have to attract the dollar. कैसे करोगे attract? When you will pay more interest rate. वो कैसे होगा? When RBI will dictate. Otherwise banks they will have a fragmented mandate. SBI को अपने profit and loss statement से मतलब है बस. ONGC को अपने से है. But macroeconomic stability needs to be maintained by the RBI only. So we have three types of NRI deposit which you know. बोलो. NRE, RA, NRO, FCNR. Good. ठीक है, then we have within this total external borrowings and all, multilateral, bilateral and all. इसका एक BOP का last year का वीडियो है, 2-3 घंटे का है, बड़ा है, बट उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा. उसमें एक छोटा सा करेक्शन है, एक टाइपो है उसमें. NRE, RO और FCNRB का एक छोटा करेक्शन करना पड़ेगा, बट अदरवाइज दैट वीडियो इज गुड. सो इफ BOP is your weakness, उसको देख लेना एक बार. Then we have this external debt. Total external debt is roughly, so we discussed that the total external debt is $500 billion के आसपास में we have this total external. Now if the question comes that our total external debt has steadily increased or steadily decreased, both are wrong. कोई steadily increase नहीं हुआ, कोई steadily decrease नहीं हुआ, because sometimes it increase, then it decrease, then it increase, then it decrease we have. सेम ही होगा, बिकॉज अब बोरो कब करोगे? व्हेन यू रिक्वायर द फंड. कब बोरो करोगे? व्हेन क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होता है यूजुअली, या फिर जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. तो अगर जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में कोई स्टडीली इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो इट मींस टैक्स कलेक्शन में भी कोई नहीं होगा. इट मींस गवर्नमेंट मस्ट बी रिक्वायरिंग सम फंड्स. गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो बाहर से भी बोरो कर सकता है ना. सो देयर कैन नॉट बी एनी स्टडीली इंक्रीज और स्टडीली डिक्रीज इन केस ऑफ द एक्सटर्नल डेट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल. देन कम्स द क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक इज द रेमिटेंसेस. So remittances अगर क्वेश्चन आया in last 5 years has steadily increased. ये बहुत देर से फिक्र रखे तुमने. अच्छा, उसमें भी मेरी गलती निकाल रहा है कि सर आप पढ़ाते ही जा रहे हो. बंद कर दूं मैं? बोलो भाई, रेमिटेंसेज लास्ट 5 years में स्टडीली इंक्रीज हुआ है? यस नो? अरे नहीं, 17 में ही कम हो गया, पहले तक ठीक था. So last 5 years में if the question comes it has steadily increased or decreased, answer is no. But if the question comes it has increased in last 5 years, it is right. 17 में it has decreased because protectionist tendencies लगाए USA में, यूरोपियन यूनियन में protectionist tendencies, और crude oil price decrease हो गया, because of which huge loss. So remittances has not steadily increased, but we know remittances के केस में India is the largest, highest remitter of the fund we have. इसी में तो चाइना से ऊपर हैं हम, roughly $70 billion के आसपास में. Total borrowings of India कितनी है? Domestic plus foreign. इंडिया Government plus private. प्राइवेट का मेजर नहीं करते हैं, डोमेस्टिक का ना. आप बोरो करोगे, कौन कौन पता करेगा उसको? तो इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट की डोमेस्टिक बोरोइंग देखते हैं. आउटसाइड इंडिया की बोरोइंग्स देखने के लिए हम गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों देखते हैं, बिकॉज वो आपको डॉलर में बोरो करना पड़ रहा है. और जैसे ही डॉलर में बोरो करते हैं तो आरबीआई आ जाता है. तो आरबीआई के पास डेटा है, यहाँ में डेटा ही नहीं है. इसलिए टोटल बोरोइंग ऑफ होल इंडिया वी डोंट नो. टोटल बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट भी नो, डोमेस्टिक होगा और बाहर वाला होगा, वो पता नहीं चलेगा. हो गया अभी समझ में? यानी एक्चुअल अमाउंट ही घट गया था. द रियल वैल्यू ऑफ रेमिटेंसेस हैज डिक्रीज्ड. देन यू हैव 5 minutes टू रिवाइज द फैक्ट्स. इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, ये जो हैंड आउट मिला है इसमें कुछ पार्ट मिस हो गया, देन यू कैन आस्क मी. Steadily decreased. Sorry. इन्वेस्टमेंट वाला नहीं, अभी भी इंक्रीज नहीं हो रहा है वो. वी डोंट हैव द डेटा एक्चुअली लास्ट ईयर का. सर्वे आया नहीं, बाकी किसी ने पब्लिश किया नहीं.
यूजुअली मई में आता है वो डेटा ना, जब आरबीआई लेके आएगा मई 15 के आसपास में लाएगा। हाँ हाँ उसमें सब है। 30-35 कम अगेन। क्या क्वेश्चन है, क्या है ये? What is the relationship of savings and investment gap? को सर्वे वाले में लिखा भी था, हमने पढ़ा भी दिया इतने अच्छे से, उसमें हमें नहीं दिखा, कुछ और समझ रहे हो आप। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं समझा पाए, मुझे समझ में आया कुछ, बोलो। सेविंग्स मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है सेविंग्स में। हाँ, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग्स ऑफ कोर्स। देखो सेविंग्स के लिए आपने इंडिविजुअल सेविंग्स में वट एवर द सरप्लस फंड दैट यू हैव इज यू आर गोइंग टू डिपॉजिट इन द बैंक, वो आपका सेविंग्स हो गया। सेविंग कौन करेगा? इंडिविजुअल करेगा, हाउस होल्ड करेगा, गवर्नमेंट करेगा, ओएनजीसी एंड ऑल ये सब करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। दीज आर द थ्री मेजर सेविंग्स इंडिविजुअल्स भी हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सेविंग इज डन बाय हाउस होल्ड्स। अब यू हैव टू ऑप्शन कि आप बैंक में जाके सेविंग कर रहे हो तो उसको फाइनेंशियल सेविंग कहते हैं, लैंड में करोगे, गोल्ड में करोगे तो इसको नॉन फाइनेंशियल सेविंग्स कहेंगे। सो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल सेविंग्स टू द फाइनेंशियल सेविंग्स, बट स्टिल नॉन फाइनेंशियल इज मोर in comparison to non-financial and financial. Non-financial is more, but it has shifted from non-financial to the financial sector we have now. Whatever savings that you have done, अब वो बैंक कहीं तो लोन देगा, so this is regarded as the investment we have. Now investment can not only be dependent upon the bank. आपको प्रोजेक्ट चाहिए, आपको पैसा चाहिए, बैंक देगा, नहीं तो आउटसाइड इंडिया परचेज करोगे आप, बोरो करोगे आप। So usually savings is being translated into investment. This was the normal convention which all of us assume, but then last year economic survey said no, there is no one-to-one relationship. इस savings होगा तो वो translate हो जाएगा investment में, because investment में अगर यहाँ से पैसा नहीं आया तो आप बाहर से borrow करोगे। But the problem is when you are borrowing from outside India, there is always a exchange risk, currency exchange risk. When you borrowed, dollar was equivalent to 60 rupees. When you have to return, dollar became 70 rupees. आपका principal amount बढ़ गया, इंटरेस्ट तो छोड़ो, your principal amount has increased by 16-17%. उतना तो borrowing rate भी नहीं है। इसलिए मसाला बॉन्ड्स लेके आए थे कि आप borrowing रुपी में करो तो रुपी में रिटर्न करो तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फिनिश हो जाए। सो यूजुअली इसके बीच में 2 to 3% का गैप रहता है। इन्वेस्टमेंट रेट कम होता, इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा होता है और सेविंग्स रेट कम होता है। इट इज यूजुअली 2 to 3% in case of India we are talking about. अब क्वेश्चन पूछो। 2 to 3% will affect the current account deficit. गैप जब बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में तो सीएडी कम होगा क्योंकि एक्सटर्नल से डॉलर्स आ रहे हैं। अरे नहीं, there cannot be any one-to-one relationship in this. CAD is only talking about current account. बाहर से जब आप बोरो करते हो तो वो तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। सो हाउ कैन वी रिलेट करंट विद कैपिटल अकाउंट? बीओपी पूछो तो समझ में भी आएगा। हाँ, बीओपी में देयर कैन बी रिलेशनशिप, हाँ बीओपी में हो सकता है, बट करंट अकाउंट डेफिसिट में रिलेशनशिप नहीं होगा भाई। ये बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा। अरे नहीं बेटा, वो आप ट्रेंड्स कंपेयर कर रहे हो, ट्रेंड्स कैन बी कंपेयर्ड बट देयर कैन नॉट बी एनी वन-टू-वन रिलेशनशिप इन दिस। अब आप एक XYZ पे प्लॉट करके आपने डेटा डाल दिया, दूसरे में डेटा डाल दिया, दिस इज जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पस, बट यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू थिंग्स कि ऐसा ही होता है। जैसे CPI, WPI इन ऑल में इफ देयर इज अ डीकपलिंग, दैट डज नॉट मीन ऑलवेज देयर इज अ डीकपलिंग। आपने एक में CPI डाला, एक में WPI डाला, दिस इज पॉसिबल। आप मैप बना सकते हो बट देयर कैन नॉट बी एनी वन-टू-वन रिलेशनशिप कि वो बढ़ेगा तो उस पे क्या। BOP का हो सकता है, POP के केस में जैसे ये बढ़ेगा BOP बढ़ेगा। हाँ, ये गैप बढ़ रहा है बिकॉज आप फॉरेन से बोरो कर रहे हो ना, वो BOP में काउंट होता है, BOP के कैपिटल वाले पार्ट में काउंट होता है। तो जैसे ये बढ़ेगा तो BOP बढ़ेगा, BOP डेफिसिट। हाँ बेटा, बोरोइंग BOP इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के 2 पार्ट हैं, इन्वेस्टमेंट जिसमें आता है आपका FDI, FII, यूरो इशू एटसेट्रा, और जिसमें आता है इसका अदर्स, इसमें आता है आपका external commercial borrowings and all. But she asked is the relationship between current account and this. No relationship. But if they ask BOP versus this, तो ये अगर 2-3% की जगह ये 6-7% हो रहा है, तो there can be chances कि ये जो extra borrowing आपने की है वो outside India करोगे,
आउटसाइड इंडिया करोगे मतलब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब बीओपी डेफिसिट बढ़ रहा है. Just 1 second. But there is no one-to-one relationship. अगर क्वेश्चन आए likely तभी टिक करोगे उसको, अदरवाइज 1-to-1 नहीं है. When we say there is a decrease in savings and investments both, there is a higher decrease in savings than in investments. हाँ, in case of India. हाँ, in case of India, last 5 years. कि percentage terms में investment का rate of decrease ज़्यादा है in comparison to the investment we have. Sorry, savings ज़्यादा है in comparison to investment. थोड़ी देर में मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे तुम. हाँ बोलो, कोई कुछ और पूछ रहा था यहाँ से. हाँ, 5 years में स्टडीली डिक्रीज हुआ है. कहाँ बढ़ा ग्रोथ रेट, ही तो 3-4 साल से डिक्रीज हो रहा है. और वही तो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि व्हेन जीडीपी इंक्रीजेस डज नॉट मींस कि इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज होगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको n नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए ना. अब पैसा ही नहीं है, कैश फ्लो ही नहीं है, तो फिर आप इंक्रीज कर दोगे, बट इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज नहीं होगा. सब कुछ काउंट. इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लेबर फोर्स भी चाहिए, लैंड एक्विजिशन भी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी चाहिए, सेविंग्स भी चाहिए. एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट रेट. जीडीपी ग्रोथ रेट इज ओनली वन ऑफ द इंडिकेटर वी हैव. उस वाले में देखना जो वो वीडियो बताया मैंने आपको. शेयर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ किसका, एग्रीकल्चर या बचाया था ना, मिनिमम करके बचाया था आपको 20 समथिंग परसेंट, 23-24%. हाँ, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग है 17%. स्पीक लाउडली, वो सुनना चाहिए पीछे वालों को भी. मतलब टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर बढ़ा, पूछा जाए तो उस केस में लेट्स सपोज कि अगर इंटरेस्ट टैक्स रेट बढ़ा, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में टैक्स रेट अगर बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए. मतलब प्राइवेट हैंड्स के पास इन्वेस्टमेंट के लिए, कॉर्पोरेट के पास इन्वेस्टमेंट के लिए. समझ नहीं है, वापस पूछो. सॉरी. टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, उसका रीजन मे बी टैक्स रेट बढ़ गया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट. जीडीपी डिक्रीज भी तो हो सकता है. यू आर टॉकिंग अबाउट 1-to-1 रिलेशनशिप पूछ रहे हो या लाइकली? लाइकली मतलब मैं पूछ रहा था कि कोई भी क्वेश्चन में अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि वो नेगेटिव जा सकता है. मतलब आपने जैसे बोला था कि ग्रोथ रेट स्टेडीली डिक्रीज में अगर 3.5 है मान लेंगे. हाँ, बट इसमें नेगेटिव भी जा सकता है ना कि टैक्स रेट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है. टैक्स रेट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. लाइकली होगा तो होगा ना, और उसके लिए तो लाफे कव है. तो इंडिया में है कहाँ इतना टैक्स रेट की वो हो उसके केसेस. अब वो एज्यूम भी तो इंडिया के केस में ही तो क्वेश्चन आएगा. तो यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि इंडिया में टैक्स रेट है कितना. टैक्स रेट तो है नहीं, इट इज नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट वी हैव. इट इज ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल्स पे है. हमारा पर्सनल इनकम टैक्स इज ओनली 30%. यू नो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इवन यूरोप, इवन यूएसए, दे हैव 40%. हाँ, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के केसेस में वी आर अमंग द टॉप 20 कंट्रीज वी हैव. बट इन केस ऑफ पीआईटी इट इज नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट. सीआईटी में ऑलमोस्ट सेम है. इंडिया में भी नेट लग के एंड ऑल करके आता है 33-34%, एंड अक्रॉस मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज दे आर चार्जिंग 35% के आसपास में. बट वो नहीं है. रिवाइज कर लो भाई, पूछ लो इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू दिस एंड ऑल. इन्वेस्टमेंट सेविंग को फॉलो करेगा, सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. हाँ, कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी. दोनों ऑलवेज नहीं है. अगेन लाइकली है. देयर इज नो 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स बढ़ेगी तो ऑलवेज इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. वही तो समझा रहा हूं. इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड. सिर्फ पैसा आने से इन्फोसिस अपना बिजनेस नहीं बढ़ाएगा. हाँ, ये सर्वे का क्वेश्चन आ गया फिर आपकी. लास्ट ईयर व्हाट सर्वे सेड कि सेविंग्स पे करोगे या इन्वेस्टमेंट. सो सर्वे सेड इन्वेस्टमेंट. इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा, सर्वे सेड इन्वेस्टमेंट. तो अगर क्वेश्चन में आए इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा है तभी इन्वेस्टमेंट को टिक करना, अदरवाइज नहीं. ओनली लास्ट ईयर सर्वे सेड कि इट शुड बी इन्वेस्टमेंट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. एनी अदर डाउट्स? 2-3 minutes में कर लो इसको रिवाइज. Whatever issues that you have, we will discuss. Then we'll go to the fact sheet. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.